So welcome to all of you in ITI skills. And today, as we know that we are just doing we are just learning about the apprentice registration, how we can do registration in apprenticeship portal, and also there are the all India the workshop is going on regarding apprentice. So I welcome to all of you here, Sanjay Dimri sir and Raghuram sir and our trainees, our trainees staff or Ishwar Singh Chauhan sir. So let's see now. Just we will know about the apprenticeship, that how we can do it, and how what is establishment, and what is also how many trainees has registered here, and what's the process, what's the criteria. So now the ma'am from Himachal Pradesh will be tell us about all the processing criteria about the apprentice. So let's see. We have to listen. 1,000 count only of apprentice engagement, wherein optional trade is performing well, and here we have 13,000 apprentices in optional trade. So we have to give a push in designated trade, or we can discuss the challenges also. So social category we have in 2,300 in SC, 450 in ST, and 5,900 in OBC. And PWD we have 5 apprentices. Age wise, 22 to 30, we have received maximum participation of apprentices, which is 10,500, and 18 to 21 we have only 4,400 apprentices. The similar pattern we have, because we count 5th, 6th, 8th, 9th and 11th informal education, we have only 537 apprentices, while 10th pass apprentice count we have 3,600, and 12th pass apprentice count we have 4,900. ITI we have 42. So in Uttarakhand we are getting maximum participation from 12th pass. So we have opportunity to work on this, and we can at least increase the number of apprentices. It doesn't matter whether it is designated or optional, but the matter that we have to engage apprentices in the state. So we can take the help of sector skill council, we can take help of the third party aggregators to increase the number. Now I come to the eKYC. So Uttarakhand, there is huge pendency, 3,563 apprentices eKYC is pending. So you have to distribute the numbers to all AAAs of Uttarakhand. सो सर यहाँ पर मैं अब जाना चाहूँगा हमारे जो प्रभारी सर हैं श्री राजाराम सर से कि eKYC में कुछ पेंडिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि eKYC में क्या होता है सर? eKYC में यही है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना जो है eKYC करवाना होता है। उसमें आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड के थ्रू अपना उसमें करवाना जरूरी होता है सभी बच्चों ने। तो उसको टाइम पे KYC करना पड़ेगी। और जो हमारे उसमें रजिस्टर्ड में इस्टेब्लिशमेंट वाले जो बाहर की फर्म है प्राइवेट में, तो उनके उसमें जब आपका पूरा वेरिफिकेशन डाटा जाएगा तभी वो हमारे ITI की उसमें अप्रूव के लिए भेजेंगे, और फिर हम यहाँ उसको मतलब प्रत्येक कैंडिडेट का अलग अलग चेक करके उस प्रोफाइल करके ओके करेंगे, तब उसमें जाएगा, तब जाके उनको जॉब मिलेगी। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो सारे KYC टाइम टू टाइम करते रहे। कुछ भी प्रोफाइल चेंज होती है, कोई क्वालिफिकेशन बढ़ती है, तो उसको उसमें ऐड करते रहे। हर बार रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन आप क्वालिफिकेशन जो है बार बार चेंज होती रहती है। कोई बड़ी डिग्री लेता है, You mean to say that all the trainees first of all will be registration, and he has to completed his KYC, and also he has to completed his data from the his apprenticeship portal. Then we will approve the data, we will approve his application whenever he has applied to any establishment like that. सो यहाँ पर तेरह डिस्ट्रिक्ट है। सो 13 डिस्ट्रिक्ट के समस्त ITI का जो डाटा है, जस्ट यहाँ पर अभी हमें भी दिखेगा एक्सेल में कि कहाँ जो है कि इस जो आपका ईयर है 22-23 में, इसमें कहाँ कितने टोटल जो है कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एज जैसे कि मैम ने पहले बताया अभी कि 16,000 समथिंग यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसमें से कुछ ऑप्शनल ट्रेड में अलग हैं और डिजिग्नेटेड ट्रेड में अलग है। आई थिंक दैट डिजिग्नेटेड ट्रेड में जो बच्चे ITI कर रहे हैं,
या जिसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रहा है। और जो आपका ऑप्शनल ट्रेड हो गया वो हो गया आपका हाई स्कूल के बच्चे या इंटर क्लास के बच्चे। और इसके अलावा जैसे अभी जस्ट हम लोग NAPS के तहत ही डिग्री कॉलेज में गए थे, तो वहाँ के जो बच्चे वो आपका ऑप्शनल ट्रेड में आते हैं। आई थिंक सो, एम आई राइट? टेक्निकल नॉन टेक्निकल हुआ ना। जी 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 जी। ऑप्शनल ट्रेड मतलब नॉन टेक्निकल जो है जितने। हाँ, ऑप्शनल ट्रेड हो गया आपका नॉन टेक्निकल, जैसे आपका हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, ये सब आपके ऑप्शनल ट्रेड में आता है। और उसी की काफ़ी अधिक संख्या है हमारे उत्तराखंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने ये बताया है। जो लेट्स सी, तो उससे क्या होगा कि एक उनके पास गवर्नमेंट का भी एक रिसोर्स होगा आपकी तरफ से, TPA भी होंगे और 10 इंडस्ट्री एक बार में कनेक्ट भी हो जाएंगे, तो जिससे एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। TPA कई बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। नंबर इंक्रीज करने हैं और मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस शो करनी है स्टेट की, तो इसलिए सर बाकी जो भी कंसर्न्स थे आपके DBT पोर्टल से रिलेटेड वो हमने नोट डाउन कर लिए। उसके लिए हम इस AAA लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे सर, स्पेसिफिकली फॉर पोर्टल एंड DBT प्रोसेस। अभी हमें दूसरी स्टेट की कॉल के लिए प्रोसीड करना है सर, तो अभी के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं इस VC को।